So good morning everyone again. So we what we are going to do, what's the order for today's class is we are going to go for a little bit of a deeper dive into your data visualization techniques. However, we will be still restricted to only ggplots, but we will see multiple applications and multiple variations of ggplot, which can help us identify different kinds of visualization and different kinds of relationship between variables. So, in our previous class, we had talked about a library called dplyr. Now dplyr, essentially what it does is it helps us to see data in a much more magnified or a much more granular way. सो आप उसको जूम इन करके, रिमेंबर ये हमने जूम इन करके पिंक प्रोफेसर देखा था, तो हम उस तरीके से उसको देख सकते हैं या उसको किसी और तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हैं. सो फॉर डेटा मैनिपुलेशन, डेटा रैंगलिंग, all of that tabular methods अगर आप कुछ करना चाह रहे हो, so we will be using dplyr library. But as we had seen that your tabular methods go to a certain extent, but after that what you need is visualization, because there is nothing like telling or showing a story in terms of visuals, because visuals will stick with people. That's how human brain is wired, that we are able to remember much more vividly when we see a pictorial kind of an analysis. And with pictorial analysis, you can easily interpret the relationship between the variables. So that's why a lot of emphasis in data science is on pictorial analysis. Now, pictorial analysis that you can do here is either your bivariate analysis or your univariate analysis. When we talk about univariate analysis, we will see what box plot, what line charts, and all of those graphs. We will see that entire family of univariate variables. But in case of bivariate variables, what we are essentially saying is हम दो variables को simultaneously study कर रहे हैं, studying relationship between two variables. That's called bivariate analysis. At times हम लोग चीज़ों को complicate करने के लिए statistician and economists, what they say, they come out with technical names, univariate, bivariate, looks fancy, but ultimately कुछ नहीं है. दो चीज़ों के बीच में क्या relation है वो चीज़ निकालने की कोशिश कर रहे हो, और वो association एक ग्राफ से पता चल सकता है. One of the types of graphs is a scatter plot. ठीक है. Now scatter plot is something that we saw in the previous class as well, but the agenda for today is a little deeper. We need to refine our idea of scatter plot, so that we can see that is there a finer version where we can analyze data much in a much better way. So one of the things that we will see in today's class, to define the agenda for today's class, we will see the normal scatter plot, the normal variation, okay, which we also saw in the previous class. Then we will see a scaled variation. What is a scaled variation? Now scaled variation is that at times a particular variable is distributed in such a way that there is huge variance in that variable. For example, let's take the consideration of population. Now population, guys, अगर आप एक स्केल पे बनाना शुरू करोगे तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा वेरीड होगी अक्रॉस कंट्री, या बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड होगी. सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, व्हाट आई एम ट्राइंग टू आस्क यू इज, will the distribution of population will be extremely spread on a scale, or will it be concentrated? कि एक स्केल है उसमें हम पॉपुलेशन देखना चाह रहे हैं अक्रॉस कंट्रीज, ठीक है, वर्ल्ड की सारी कंट्रीज का पॉपुलेशन देखना चाह रहे हैं. ये पॉपुलेशन आसपास होगी, ये पॉपुलेशन का वेरिएंस बहुत ज़्यादा हाई होगा, इनकी ग्रुपिंग्स कैसी होंगी? So a country with a small population would be lower on the scale, whereas a country with a higher population would be higher up. So अगर आपको इसको कंसंट्रेशन मिक्स बनाना हो तो आप मेजर कंट्रीज कहाँ बनाओगे?
guys, you have to be very careful while stating all of this. अब यूजुअली आपको जो आउटलायर्स मिलेंगे, आपको ये भी देखना है कि आपका स्क्यूड स्टैटिस्टिक्स में ये स्क्यूनेस जो ऑफ डेटा है ना, ये आपको देखना है कि आपका स्क्यू किस तरीके से है, ठीक है। तो आप देखोगे कि आपकी पॉपुलेशन जो है वो मेजरली छोटी पॉपुलेशन है, यहाँ पर है, ठीक है, इस तरीके से, बट यू विल गेट अ कपल ऑफ आउटलेयर्स। ये कौन है आउटलेयर्स? मेजॉरिटी वर्ल्ड यहाँ है इस रीजन में, बट यू विल गेट सम आउटलायर्स यहाँ पर। हु आर दीज? इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, यूएस, ये सारी कंट्रीज़ हैं। सो इस तरीके से आपका यू करके आपका कर्व बनेगा। सो यू नीड टू बी वेरी श्योर कि आपके जो एक्सट्रीम एंड्स की वैल्यूज हैं वो क्या दिखा रही हैं। नाउ सो दीज आर ड्रैगिंग द ओवरऑल कर्व टूवर्ड्स द राइट, ठीक है। Now if you are drawing if you're making a graph जिसमें मेजॉरिटी लोग यहाँ पर हैं बट वेरिएंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कई इनको भी तो आपको प्लॉट करना है, ठीक है, देन व्हाट यू टेक, क्योंकि कुछ कंट्रीज हैं, फॉर एग्जांपल लेट मी गिव यू, आई वाज टीचिंग डेमोग्राफी द अदर डे। नाउ लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ से ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। एनी आइडिया ऑस्ट्रेलिया की पूरी पॉपुलेशन कितनी है? 18 मिलियन। 18 मिलियन कितना होता है गाइस? 18 into 10 to the power 6. What is it? How many lakhs? How many crores? Almost 2 crores. 1.8 crores. ये पूरी ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन है गाइस, एंड दिल्ली की पॉपुलेशन की जितनी है। इंडिया ऑन द अदर हैंड प्रोड्यूसेस वन ऑस्ट्रेलिया एवरी ईयर। तो ये डिफरेंस है। जब इतने स्केल में ज़्यादा आपका डिफरेंस हो, यू कैनॉट एनालाइज दीज कंट्रीज ऑन अ सिंगुलर स्केल। यू हैव टू जंप, यू हैव टू टेक दो स्केल्स विद अ जंप, ठीक है, क्योंकि इन बिटवीन में खाली एरिया है, फिर एकदम से कंट्रीज आ रही हैं, ठीक है। सो यू नीड टू सी वेयर योर मेजॉरिटी कंट्रीज आर एंड हाउ डू यू analyze these countries, ठीक है। So or how do you put them on a particular scale? Now the thing is that when you are comparing countries across an axis, how can you jump these scales? So instead of taking population as, अभी तो आप population कैसे ले रहे हो, एक बंदे को एक ले रहे हो, यहाँ पर population आपने simple population इन मिलियंस लिख दिया कि इसकी पॉपुलेशन 18 मिलियन है, तो इस स्केल पे यहाँ पर 18 मिलियन की इंडिया की पॉपुलेशन है, इसी स्केल पे इंडिया की पॉपुलेशन 1300 मिलियन है। तो सोचो आप एक स्केल इस तरीके से बना रहे हो कि एक कंट्री जो है वो 18 मिलियन पे है और दूसरी कंट्री जो है वो 1300 मिलियन पे है और तीसरी कंट्री जो है वो 1500 मिलियन पे है। Wouldn't it be a very long scale? So in order to bring them on a similar scale so that हम इसको एक साथ नाप पाएं, what we do is we convert it into a log form। हम log form में convert कर देते हैं इसको। तो log form में क्या होता है कि वो हर चीज़ 10 to the power हो जाएगी। For example अब आप इसको converted into a log 10 scale, हम इसको log 10 स्केल पे कन्वर्ट कर देते हैं। log 10 स्केल पे कन्वर्ट करने का बेस्ट वो क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर इसी को अब आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, ये जो आपकी फिगर हो जाएगी ये ई फॉर एग्जांपल हो गई। तो अगर आपकी कोई थाउजेंड्स में फिगर है तो आप उसको लिख दोगे E3, ठीक है, इस तरीके से हम 1E3 लिखते हैं उसको, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये E है तो 1000 को आप लिख सकते हो 1E3। सिमिलरली आप 1 मिलियन को लिख सकते हो 1E6, ठीक है। 1 बिलियन को लिख सकते हो 1E9। तो आपने इस तरीके से आपने स्केल चेंज कर दिया, और इस स्केल चेंज करने की वजह से यू कैन नाउ ब्रिंग ऑल द कंट्रीज ऑन अ सिमिलर scale. We'll see that scaling aspect.
तो आज हमें ये स्केलिंग एस्पेक्ट भी देखना. सो वी विल सी द स्केलिंग एस्पेक्ट एंड देन वी विल ऑल्सो सी दैट एट टाइम्स व्हाट वी नीड टू ऐड इज हम ब्लैंड नहीं देखना चाहते हैं. मैंने स्कैटर प्लॉट्स भी देखा. तीसरी चीज़ हम देखेंगे, हमने स्कैटर प्लॉट्स तो देखे, हमने उसको स्केल भी कर दिया. ठीक है, सो दैट वी कैन सी ऑल ऑफ दीज कंट्रीज ऑन अ नाइसर स्केल. ठीक है, जिसको हम बोलेंगे log 10. बट अपार्ट फ्रॉम दैट what we also want to see is that we want to see different कैटेगरी, अलग अलग कैटेगरीज को हम अलग अलग कलर्स में देखना चाहते हैं. ठीक है, जो लोग पाइथन पढ़ रहे हो उनको इसी चीज़ को हम ह्यू बोलते हैं. इन पाइथन वी कॉल इट एज ह्यू, इन आर वी कॉल इट एज कलर. ठीक है, सो कैटेगोरिकल वेरिएबल, विजुअलाइजिंग कैटेगोरिकल वेरिएबल. सो वी वांट टू सी, अभी तो हमने जो कल ग्राफ बनाया था, इफ यू रिमेंबर, सारे ब्लैक पॉइंट्स आए थे, याद है? सारे ब्लैक पॉइंट्स थे, रिमेंबर गाइस? all the countries were represented by a similar black point. But what if I want to see each particular continent in a different color? So we will see that, and we will see that आप किसको आप कलर में डालोगे और किसको कलर में नहीं डालोगे. That is also important because you want the audience, you want the client, or you want the viewer to immediately see the graph and tell boss ये बता रहा है ये graph. Imagine yourself in the shoes of a client or a viewer of your data, and immediately after you view the graph, you should be able to comment 3-4 things about that particular graph. So we will see this particular aspect as well. We will see this particular aspect of visualizing categorical variable. And the last thing that we will see today is can we have size as well? No, not the last thing, but we will add the size component. Now what is this size component? I want to see that जो कंट्री का पॉपुलेशन बड़ा हो वो ज़्यादा बड़ा डॉट हो, और जो कंट्री का पॉपुलेशन कम हो उसका छोटा डॉट हो. ठीक है, सो if I also want to incorporate the element of size और GDP का साइज जो है वो बड़ा या छोटा हो इन टर्म्स ऑफ वो जो डॉट है, जो हम डॉट बना रहे हैं यहाँ पर, वो डॉट बड़ा हो जाए अगर उस कंट्री का GDP बड़ा है, और अगर वो डॉट छोटा हो जाए अगर वो डॉट छोटा है, अगर वो कंट्री का GDP कम है तो. सो वी वांट अनदर, we are adding another dimension. This is adding another dimension to your scatter plot. So that becomes much more, it can tell much more things about the data as compared to a normal scatter plot. Okay, we will see, and we will be very careful guys about these things. ये जो चीज़ है visualization in terms of categorical variable, ये जब आप कलर में करना चाहते हो तो वो हमेशा कैटेगोरिकल वेरिएबल को करोगे. I'll tell you why. एंड जब आप साइज में करना चाहते हो आप हमेशा न्यूमेरिक वेरिएबल. although it seems very natural and very very sensible, but still I'll tell you when we'll draw these graphs that why do we actually do it. And the last order for today's class is a facet graph, where you will divide your entire plots. आप ये जो plots हैं इनको आप divide कर दोगे. Yes, Paribadi, lecture is being recorded. You will divide this particular graph into multiple subgraphs. So that suppose मैं कहता हूँ कि मैं एशिया का अलग ग्राफ चाहता हूँ, मैं क्या कहते हैं, मैं अफ्रीका का अलग ग्राफ चाहता हूँ, मैं मिक्स नहीं करना चाहता, मैं सारे ग्राफ्स को अलग अलग देखना चाहता हूँ. So we have that option as well. So we will be covering these 5 things in today's lecture, and on Wednesday what we will do is we will be covering that univariate वाला जो aspect है जिसके अंदर bar plots होते हैं, line graphs होते हैं, and bar graphs होते हैं, and box and whisker plots होते हैं. We will see all of those plots as well. So that on Friday when we meet next Friday we will be able to
cover, we will be able to do a hands-on session on whatever we have learned. ठीक है, चलो let's start with our. So guys, we are again starting with our Gapminder data. Now in Gapminder data, if you remember, we had created 2007 का हमने एक subset बनाया था. What was that 2007 का subset? We used filtering method. So what was filtering method? That you used a pipe. This was, if you remember, this was called a pipe. You said that take this data, take what is before this, filter something out for me, because this data in itself is a huge data set. I don't want the entire data set. I just want to filter the year 2007. तो मैं सिर्फ 2007 में बाकी सारी 142 कंट्रीज देखना चाह रहा हूँ कि वो कैसा दिखता है, क्या उनका एनालिसिस है. So you use this and you create. Remember guys, ये 2007 का हमारे पास आ गया. Now what we created in the last class was a ggplot. Now ggplot guys, we had seen in the last class as well that it takes into consideration three things. You can always remember that your ggplot will take three things, and try it. Don't copy these guys. I'm telling you time and again, if you copy and run these codes, you will not learn it. It is impossible. Even if you are Sundar Pichai, it is impossible that you will learn coding like this. You have to make errors. आप इसको बस अपनी एक फाइल अलग से मेंटेन रखो, ठीक है. उसमें आपके पास करेक्ट कोड्स हैं, बट फॉर यू टू टाइप इट आउट, यू विल प्रैक्टिस इट. यू डोंट वांट टू लर्न इट, ठीक है. लर्निंग का एस्पेक्ट नहीं है कि यू हैव टू मेमोराइज किया. अच्छा है, आप एक सेकंड में गूगल करोगे, आपको पता चल जाएगा कि अच्छा गूगल में ये हुआ है, ठीक है. यू हैव स्टैक ओवरफ्लो, यू हैव गीक्स फॉर गीक्स, you have data science masters or data science masters. तो बहुत सारी you have these websites which will help you in code. Don't worry about the coding part. Coding part आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, but you need to remember the logic. और जब तक आप उसको build नहीं करोगे, हाथ से लिख के नहीं build करोगे, ठीक है, तब तक आपको नहीं निकलेगा. और उसको कॉपी पेंसिल से लिखने का कोई पॉइंट ही नहीं है, ठीक है. सो type out your codes by yourself, make those errors, see where are you missing the parenthesis, and वो errors आएंगे, वो errors अपने आप resolve करोगे, and that is where the learning will come. So I'm giving you in such a way because I want to save time, ठीक है, because I want to cover much more than what is covered in the code, what is given in your course, ठीक है. That's why I'm giving you all these written codes. Now the to make a ggplot, your system load is heavy, okay. To make a ggplot, what you do is you give the command. First of all, you take down the take up the library called ggplot2, ठीक है. This, if you have already installed tidyverse, this is available for you in your packages, but you are calling this particular library to the current session, ठीक है. इट्स ऑलरेडी देयर इन योर मेमोरी, बट आप उसको अब, इट्स समथिंग लाइक कि आपके पास अगर आपको पता हो हार्ड डिस्क होता है और रैम होता है. पता है दो चीज़ें डिफरेंस पता है? चलो छोड़, लेट मी नॉट गेट इनटू दिस थिंग. रैम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जितनी आपकी तेज़ रैम है उतना आपका सिस्टम हैंग नहीं करेगा, क्योंकि उतनी सारी चीज़ें वो साइमल्टेनियसली कर सकता है सिस्टम आपको, ठीक है. रैंडम एक्सेस मेमोरी. सो इट इज़ समथिंग लाइक, इट इज़ अकेन टू समथिंग लाइक दैट यू हैव the package in your hard disk, but you are bringing it into your RAM for working. So something like that. It's just an analogy, guys. Now, so what we do is we now want to plot we want to plot a graph. Now a ggplot, this thing code requires three things. A, what do you want to plot? So we say that okay, we want the 2007 data to be plotted. We want to visualize this. Okay. Then it says that okay, if you are plotting a ggplot, there are certain aesthetics graph that we need. So aesthetics graph is basically telling the graph that what variables are you supposed to plot.
सो वी विल सी दैट देर आर डिफरेंट वेरिएबल्स. अगर अभी हम बाईवेरिएट पे, इसलिए हम द रीज़न दैट वी आर इन बाईवेरिएट बिकॉज हम x और y स्पेसिफाई कर रहे हैं. जब हम यूनिवेरिएट में होंगे तो क्या होगा गाइस, वी विल हैव ओनली वन वेरिएबल. ठीक है, वी डोंट नीड टू गिव द अदर वेरिएबल. तो एक ही सिंगल वेरिएबल से काम हमारा चल जाएगा. सो अभी हम बाईवेरिएट में कर रहे हैं. तो वो कहता है कि बॉस मुझे एस्थेटिक्स ग्राफ बनाना है, तो एस्थेटिक्स ग्राफ के लिए मुझे आप x और y बता दो. ठीक है, और आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दिस इज अ स्कैटर प्लॉट, तो हमें x और y देना है. देन द थर्ड थिंग इट वांट्स इज कि अच्छा आपने मुझे x y बता दिया, तो आपने मुझे एक्सिस बता दिए कि क्या है और कौन सा एक्सिस पे क्या है. बट नाउ आई वांट यू टू टेल मी दैट each data point, like in this case we have 142 data points. ठीक है, each particular line, each particular observation is a data point, right? So now it says that how do you want me to plot each particular observation, in what form do you want me to put it out. ठीक है, so there we will see there are multiple ways to plot this. So we say that boss, give me a geometric point. Give me a geometric point. So geom stands for geometric and point is because we want a singular, a small dot. So we want a geometric point. So if you run this, you will get a nice looking graph like this. And you can save it, you can export it, whatever you want to do. You can save it as PDF, you can copy it on in your image. So whatever you want to do, you can do it. You can copy it and use it for your analysis. This is what we saw in the previous class. Now guys, tell me what is the problem in this kind of a graph. Now you have to we already have learned something about it, but you need to elaborate on it. अभी हम जो हमने डिस्कशन किया वो काफ़ी था उसके लिए, इसकी डिस्कशन के लिए. और लेट मी ड्रॉ दिस ग्राफ गाइस, उससे और क्लियर होगा. सो व्हाट आई हैव डन इज इन दिस केस आई हैव टेकन पॉपुलेशन एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी. यहाँ पर जीडीपी पर कैपिटा एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी, यहाँ पर पॉपुलेशन एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी. टेल मी गाइज व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दिस पर्टिकुलर. परिभाषा से स्केलिंग. गाइज ये सबको समझ में आना चाहिए, अगर सबको समझ नहीं आया तो फिर पढ़ाना बेकार है. Now the problem with this guys is, अब देखो E0 मैंने आपको क्या बताया था कि E0 दैट मीन्स ये जो है ये आपको थाउजेंड्स में बता रहा है अभी इस वक्त वैल्यू. ये जो वैल्यू बता रही है, फॉर एग्जाम्पल ये कौन सी कंट्री होगी गाइज, विच इज दिस कंट्री. ऑल ऑफ यू अग्री गाइज ये चाइना है. और ये चाइना कैसे देख सकते हो आप, यहाँ से कैसे रीड करोगे इस डेटा को, E प्लस पॉइंट E प्लस 1E का मतलब है 1 एंड और इसको आप 10 ले लो. ठीक है, 10 रेज टू द पावर 9. 10 रेज टू द पावर 9 कितना होता है, व्हाट इज 10 रेज टू द पावर 9. तो यहाँ पर जो स्केल्स हैं वो ख़राब तरीके से स्केल है. आपने इतना बड़ा स्केल बना दिया है कि ये जो कंट्री जो छोटी छोटी मिलियंस में जो कंट्रीज़ हैं जिनका ये पावर जो है वो अगर इस स्केल पे देखो तो इस स्केल पे इनकी जो वो है वो मिलियंस में है. तो दीज कंट्रीज आर ऑल दोज कंट्रीज जो 10 रेज टू द पावर 6 के स्केल पे लाई कर रही हैं. ठीक है, सो इसीलिए या उससे भी कम है कई कंट्रीज़. फॉर एग्जांपल अब छोटी छोटी कंट्रीज दो जैसे वनालुतु और फॉर एग्जांपल फीजी या वो ले लो क्या कहते हैं न्यूजीलैंड. 4 मिलियन पॉपुलेशन, 40 लाख लोग. 40 लाख लोग तो दिल्ली के अंदर मोमोज ही खा रहे होते हैं शाम को अगर आप बाहर निकल जाओ तो ये पॉपुलेशन का तो स्केल है हमारा. तो अगर हम स्केल की बात करें तो ये सारी की सारी कंट्रीज़ आपको दिख रहा है कि ये सारे के सारे छोटे यहीं पे लाई कर रहे हैं. कुछ ये बाकी सारी कंट्रीज़ यहाँ लाई कर रही हैं और पूरा खाली स्केल है. एंड देन यू हैव दीज इंडिया एंड चाइना. देयरफॉर दिस कैन नॉट वर्क. We need to scale this this should give you an intuitive idea that we need to scale this particular variable. And one of the best ways to scale a particular variable is to use log scale. Okay? And why you will be using scales is that because your population is spread across various magnitudes. कई बिलियन में है, कुछ
मल्टीफोल्ड मिलियंस में और कुछ थाउजेंड्स में, ठीक है। सो आप एक्स वेरिएबल को इस केस में लॉग स्केल पे ले जाओगे, ठीक है। एंड द वे टू डू इट इज, यहाँ तक का आपका कोड बिल्कुल सेम है, कैन यू सी सेम कोड है, बट देन यू ऐड प्लस एंड यू से, ये आप आगे भी ऐड कर सकते हो। द रीजन दैट आई डू प्लस एंड देन एंटर इन द नेक्स्ट इज कोड की ना रीडेबिलिटी इजी हो जाती है और आपको इमीडिएटली पता चल जाता है कि गलती कहाँ हो रही है, ठीक है। तो इसीलिए मैं कोड को हमेशा इस तरीके से लिखता हूँ, बोथ इन पाइथन एंड इन आर, सो दैट आई कैन रीड इट बेटर, ठीक है। रीडिंग ऑफ कोड इज ऑल्सो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। सो these 3 points ये तो हमने पहले ही देखा था। now what I'm saying is boss scale underscore x, अगर आप इसको y कर दोगे तो y उसको कर देगा। now is there a problem in y guys? is there a problem in the y variable here? y variable बताओ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी में कोई प्रॉब्लम है? पक्का ऑल ऑफ यू अग्री लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो बिल्कुल ठीक चल रहा है, अराउंड 40 से है और 80 समथिंग पे जा रहा है। ये कौन सी कंट्री है? ये कौन सी कंट्री है? जापान, एग्जैक्टली, ठीक है। तो अब आपको ये सारी चीज़ें पता है कि अच्छा y को स्केल करने की ज़रूरत नहीं है, x को मुझे स्केल करना है किसी तरीके से। सो व्हाट वी डू इज दैट वी से स्केल अंडरस्कोर x log 10 and parenthesis open and close. So the moment we do this, our graph becomes much more neater and it becomes much more intuitive now. If you see this graph is much more intuitive in its reasoning as compared to the previous graph. Okay. Now you see कि अब आपने क्या करा, अब आपने कंट्रीज को ऐसे स्केल पे ले आए, ठीक है। तो अब ये जो स्केल है अब वो e रेज टू द पावर 6 से लेके e रेज टू द पावर 9 तक है। e रेज टू द पावर 9 का मतलब बेसिकली है पहले आपका जो स्केल चल रहा था वो नंबर्स में चल रहा था, दिस वाज प्योर नंबर्स। नाउ दिस स्केल इज कन्वर्टेड इनटू लॉग नंबर्स। सो ये क्या आपको मिल जाएगा, व्हाट विल दिस टेल मी, क्या बता रहा है ये? Can anyone decipher this and this? Come on guys, what is this number telling you? 1e plus 6, exactly। अब ये आ गया 1e, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 10 to the power of 6 which is 1 million। तो अब ये पूरा स्केल अब क्या हुआ, हर जो नया आपका वो पॉइंट आ रहा है उसमें रेज टू द पावर 10 से आप चल रहे हो, ठीक है। तो ये 10 रेज टू द पावर 6, ठीक है, ये 1 मिलियन, ये आपका 10 मिलियन, ये 100 मिलियन और ये 1 बिलियन। तो 10 की पावर से अब स्केल जो है आपका इंक्रीज होना शुरू हो गया। तो इसीलिए अब आपका ये जो ग्राफ है ये मच मोर नीटर आ गया, ठीक है, बड़ा नीटली सा आपका दिख गया अब आपको ये ग्राफ, ठीक है। पहले देखो जापान कहाँ बेचारा कहाँ यहाँ एक्सेस पे यहाँ पड़ा हुआ था, ठीक है, और सारी कंट्रीज यहीं एक साथ क्लस्टर्ड थी। नाउ यू सी यू वेल स्प्रेड डेटा, ऑल्दो ये गैप है बट अभी आपको क्लियर आउटलायर्स भी दिखा रहा है कि ये आउटलायर्स में है, ठीक है। और ये जापान देखो अब यहाँ पर दिखा रहा है आपको, ठीक है। समझ में आया? व्हेन वी विल यूज स्केलिंग, ठीक है। सो ऑलवेज ट्राई टू आस्क योर सेल्फ व्हेन यू आर स्केलिंग कि बॉस यहाँ पर डेटा में बहुत वेरिएशन है या नहीं, अगर बहुत ज़्यादा वेरिएशन है तो उसको स्केल करो। एंड we will see in actual data science when we are practicing, scaling is something which is mandatory। आप in fact scale करोगे और not just scale करोगे, there is something called as standard scaler, min max scalars। आपको standardize भी करना पड़ेगा सारा का सारा डेटा, ठीक है। statistics में आप standardization देखोगे which is essentially, Ashwara will be teaching you standardization, x bar minus mu upon स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है। इसको स्टैंडर्डाइजेशन बोलते हैं, कई बार जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड स्केलर। अभी सिर्फ नोट कर लो, देयर इज अनदर स्केलर कॉल्ड माइनस एक्स मैक्स अपॉन एक्स मैक्स
minus x min. This is called as min max scalar. अभी सिर्फ नोट करके रख लो. You will be using this at least in statistics, and I will be dealing with this in econometrics as well. ठीक है, just note it down कि हम scale करते हैं सारा data to compare. ठीक है, I'm not getting into the details right now. Now let's see the next aspect. तो हमारा first aspect हमें समझ में आया कि boss we need to scale it, but at times you need to scale both variables. Now tell me guys, of all these variables कौन से ऐसे variables हैं जिसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन होगा? Of all these variables, पहली बात तो न्यूमेरिक में ही होगा, ठीक है, तो इसमें से कौन से वेरिएबल्स हैं जिसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन होगा बिटवीन कंट्रीज? वी ऑलरेडी नो पॉपुलेशन का होगा. ऑल ऑफ यू एग्री? जीडीपी पर कैपिटा का भी होगा. जीडीपी पर कैपिटा बहुत ज़्यादा हो सकती है, ठीक है, और जीडीपी पर कैपिटा बहुत कम हो सकती है, ठीक है. हम वर्ल्ड की कितनी लार्जेस्ट कंट्री हैं गाइस? एनी आइडिया? सिक्स लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ योर पीपीपी, ठीक है, सॉरी, थर्ड लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ पीपीपी एंड सिक्स लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ नॉमिनल जीडीपी, ठीक है. सिक्स लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ योर नॉमिनल एंड पीपीपी टर्म्स के टर्म्स में देखोगे तो थर्ड लार्जेस्ट है, ठीक है. However, when it comes to per capita, तो our rank becomes 145, क्योंकि हम लोग इतने ज़्यादा हैं इसलिए जीडीपी है, बट जब आप उसको पॉपुलेशन से डिवाइड कर दोगे तो हमारी रैंक 145 पहुंच जाती है. और उसके बीच में ऐसी कंट्रीज जिनके आपने नाम कभी ना ज़िंदगी में सुने हैं और ना कभी सुनोगे, ऐसी कंट्रीज के नाम हैं. टोटल 200 तो देश हैं, वो 200 देश में भी हम 145 पे लगाए कर रहे हैं, ठीक है. सो यहाँ पर अब क्योंकि वेरिएशन बहुत अगेन ज़्यादा होगा, कईयों का बहुत ज़्यादा जीडीपी पर कैपिटा होगा, कईयों का कम होगा. हम वी आर अराउंड दी $2,000 मार्क, ठीक है. सो और कई कंट्रीज़ हैं जो $40,000 मार्क के अराउंड है, ठीक है, यूएस जैसी कंट्रीज़. तो वी नीड टू स्केल दैट पर्टिकुलर वेरिएबल एज वेल. तो अगर हम ग्राफ बनाना चाहें बिटवीन पॉपुलेशन एंड जीडीपी पर कैपिटा, कि अच्छा पॉपुलेशन और जीडीपी पर कैपिटा आपस में कैसे दिखते हैं, क्या रिलेशनशिप है, वी वुड हैव टू टेक लॉग ऑफ बोथ दीज वेरिएबल्स बिकॉज बोथ ऑफ देम आर ससेप्टेबल फॉर ह्यूज डिफरेंसेस इन स्केल. सो द मोमेंट वी रन इट वी गेट दिस काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप. ठीक है, ये भी आपकी स्केल पे आ गई और ये भी आपके स्केल पे आ गई. नाउ रन दिस. देखा डिफरेंस? देख रहे हो गाइस? डिफरेंस देख रहे हो? यहाँ पर आपकी जो फिगर थी, विल कंपेयर बोथ दिस फिगर्स गाइस. ये आपकी थी विदाउट स्केलिंग, एंड अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपकी कुछ कंट्रीज़ हैं और मेजॉरिटी कंट्रीज़ कहाँ लाई कर रही हैं? कैन यू सी गाइस? मेजॉरिटी कंट्रीज़ आर नियर दी ज़ीरो एक्सेस. यहाँ पर सारी कंट्रीज़ हैं. कुछ कंट्रीज़ हैं जो ऊपर हैं, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, इनको हम बोलते हैं मिडिल इनकम ग्रुप कंट्रीज़ गाइस, जिनकी जीडीपी पर कैपिटा $2,000 से लेके $10,000 के बीच में होती हैं, ठीक है. इनको हम बोलते हैं मिडिल इनकम कंट्रीज़. जैसे इंडिया मिडिल इनकम कंट्री है, तो मेजॉरिटी आपको कंट्रीज़ देखो यहाँ इसी रेंज में मिल जाएंगी. दिस गिव्स यू एन इंडिकेशन कि बॉस वी नीड टू डू सम काइंड ऑफ स्केलिंग. हमारा सारा का सारा डेटा नीचे खिंचता हुआ आ रहा है. And if you do that scaling where your data is much widerly represented as compared to your previous data, so इस तरीके से आप इसको स्केल कर सकते हो. Then समझ में आया गाइज? स्केलिंग समझ में आई? कब स्केल करोगे, कब नहीं करोगे. गाइज जिनके पास लैपटॉप का एक्सेस नहीं है, आई होप यू आर प्रैक्टिसिंग अ लिटिल ऑन आवर क्लाउड. ठीक है, प्लीज डू दैट गाइज, because things take time at college. It's not as if that I mean these are things at my disposal. ठीक है. So एक परिभाष question is, do we have to put a plus sign between scale? तभी शायद से हमारे यहाँ तो ग्राफ सेम आया क्या?
It should be. Graph same है. Oh guys, sorry. Yes, you have to put a sign, guys. My code was wrong. Thank you, Paribha. If you see these two graphs, you can easily see that यहाँ पर देखो, यहाँ पर अब आपका जो डेटा है वो मच बेटर स्केल्ड है एज कंपेयर टू दिस पर्टिकुलर स्केल. एज कंपेयर टू दिस पर्टिकुलर स्केल अब ये बेटर डेटा रिप्रेजेंटेड है. वो जो कंसंट्रेशन था, यहाँ पर जो कंसंट्रेशन था वो सारा कंसंट्रेशन हट गया. क्यों? क्योंकि वो जो इनिशियल वैल्यू ले रखी थी, वो ली हुई थी, वो क्या थी? वो सीधा 0 से 10,000 था. अब यहाँ 0 से पहले 1000 जा रहा है, 1000 से 3000 जा रहा है, 3000 से फिर 10,000 जा रहा है, एंड देन इट इज़ गोइंग टू 30,000. बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज विल लाई इन दिस रेंज, देयरफॉर द डेटा इज मच वाइडरली स्प्रेड. क्लियर? समझ में आया? थैंक यू परिभा. So always compare your graphs, guys. That was the intention. Then, so as I told you, y-axis goes from 1E3,000 to 1E4, which is 10,000, to 1E5, which is 1 lakh. ठीक है, इस तरीके से आपका y-axis जा रहा है. Now, let's add more aesthetics to our graph. ठीक है, let's add more aesthetics to our graph. And what do we mean by adding more aesthetics to our graph is that we take up color and size. Now what I want is that I want to see, अभी ये जो countries हैं, ये जो सारी countries हैं, आपको पता है कि कौन सी कंट्री कौन सी है? ये आपको पता है कि ये मतलब looks like a very bland analysis. ठीक है. आइडली मैं देखना चाहता हूँ बॉस कौन सी कंट्रीज हैं या कौन से कॉन्टिनेंट्स हैं जो अच्छा कर रहे हैं और कौन से कॉन्टिनेंट्स हैं जो बुरा कर रहे हैं. इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन अगर मैं इनको बांटना चाहूँ, वेयर डू यू थिंक विल लाई एशियन कंट्रीज? वेयर डू यू थिंक विल लाई एशियन कंट्रीज? इसको 4 क्वाड्रेंट्स में अगर मैं बांट दूँ तो वेयर डू यू थिंक? Let me suppose I divide this into 4 quadrants. These are my 4 quadrants. Where do you think will Asia come, guys? Where will Asian countries come? Paribha says fourth quadrant. So you are saying Asia will come here. Why 4th quadrant, guys? The population is higher and the GDP is less. Yes, exactly. तो आपको एशियन कंट्रीज अभी हम हाइपोथेसिस कर रहे हैं. दिस इज समथिंग लाइक सेटिंग अ हाइपोथेसिस. ठीक है. वी विल ऑल्सो इन दिस कोर्स एंड इन योर स्टैटिस्टिक्स एंड इन इकोनोमेट्रिक्स वन ऑफ द की थिंग्स दैट वी विल सी इज हाइपोथेसिस टेस्टिंग. ठीक है, ये हमारा हाइपोथेसिस है. देन वेयर डू यू थिंक विल कम यूरोपियन कंट्री? ऑल ऑफ यू अग्री दैट यूरोपियन कंट्रीज विल कम हेयर. लो पॉपुलेशन बट वेरी हाई. लेट्स सी. एंड इन माय एंड इसमें कौन सी होंगी गाइस? इसमें कौन सी होंगी? 3rd क्वाड्रेंट में अनीशा सेज अफ्रीका, साउथ अमेरिका, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज भी यहीं पे लाई करेंगे. सो ये हमारा हाइपोथेसिस है. लेट्स चेक इट आउट. अब मैं इसको डिवाइड करना चाहता हूँ. इन सारे पॉइंट्स को आई वांट टू डिवाइड इट इनटू डिफरेंट कलर्स. ठीक है. नाउ इफ आई वांट टू डिवाइड दिस इनटू डिफरेंट कलर्स, व्हाट आई डू इज I want to add a color aesthetic. So all we need to do is within the same plot. Now here we are plotting population and life expectancy. Let's इसी को करते हैं क्योंकि हमारा comparison हो जाएगा. Exact same code except for the fact that I've added a color component. And I've said, and guys remember, if you're working with Python, this is called as hue, H-U-E, hue. Okay. Now if you're doing this, now remember guys, should this particular variable, let's first run it. Let's copy it and let's analyze it here. So what it does is it has created this legend for us, and we had created this kind of a graph
Now can we see guys Asian countries are here? Can you see green is Asia, you can see Asia. इसमें इंडिया कहाँ है? Which one is India? Can someone point out? इंडिया कहाँ है guys? ये या ये 1 की 2? The upper one. अपर वन, अरे अपर वन जो है वो राइट में है, लोअर वन होगा वो, ये चाइना है, ठीक है. सो दिस इज इंडिया. तो इससे आप इजीली एक तो आपने आइडेंटिफाई एंड यू सॉ दैट, देखो ये सारी की सारी, यू सॉ दैट ऑल ऑफ दीज आर एशियन कंट्रीज. Our second hypothesis was that most of the European countries, blue will be here. Isn't that what we found? Then we also saw that a lot of African countries, अब वो Americas जो हैं, ये जो Americas जो हैं वो Americas different है और ये Americas different, वो उसने Americas को एक साथ ले लिया, इसलिए आपको American ये countries यहाँ मिल रही है, but majority आपको यहाँ पर African countries. Brownie question is which one is this? 2 मिनट तसल्ली से सोचो. पॉपुलेशन देखो, पर कैपिटा जीडीपी देखो. गुड गाइस, दिस इज यूएस. अमेरिका है, इट्स अराउंड 330 मिलियन. एक और जगह की 330 मिलियन है, वो भी यूएस ही है. कौन सा है वो प्रदेश? हमारे देश में एक प्रदेश है, वो भी यूएस के बराबर ही है, यूपी. यूपी और अमेरिका एक जैसे हैं. सो इससे एक मूवी याद आई. इफ़ यू नॉट सीन डेफिनेटली वॉच इट. इट्स अ वेरी लो बजट मूवी कॉल्ड फंस गए ओबामा. ठीक है, वॉच दैट मूवी. आई रियली लाइक्ड. लो बजट मूवीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती हैं. चलो, नाउ so we have seen this. Now let's check this out. What is this going to tell us? This is going to tell us कि बॉस पॉपुलेशन और लाइफ एक्सपेक्टेंसी, पॉपुलेशन कौन सी कंट्री का ज़्यादा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कौन सी कंट्रीज़ की ज़्यादा है. ठीक है. सो अगर मैं इसी डायग्राम को अगर 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करूँगा, और हमने वही फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट है, where will you find in Asian countries and where will you find European countries? X axis पे population है, Y axis पे life expectancy है. I want you to imagine and tell me where will Asian countries lie, where will European countries, which will be in second quadrant, Ayushi? Asian countries. Asian countries will be in second quadrant. ओके, आयुषी से सेकेंड क्वाड्रेंट में एशियन कंट्रीज होंगी, विच एसेंशली मीन्स कि आप कह रहे हो कि उनकी पॉपुलेशन कम है और लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है. इज दैट ट्रू? ओके, सोनल सेज फोर्थ एशियन. सेकेंड में कौन होगा गाइस? सेकेंड में सोचो. फोर्थ इज एशियन, ठीक है, एशियन आपको मिल जाएंगे. फोर्थ इज यूरोपियन कंट्रीज. ठीक है. क्यों? आप देखो ना, आप कह रहे हो कि मेरा यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो एक्स ही था ना. आप कह रहे हो राइट में मेरी पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो राइट में तो एशिया की पॉपुलेशन ज़्यादा है, लेफ्ट में मेरे पास यूरोप की पॉपुलेशन कम है. फिर आप एक्स एक्सेस पे जीडीपी नहीं देख रहे, आप लाइफ एक्सपेक्टेंसी देख रहे हो. लाइफ एक्सपेक्टेंसी किसकी ज़्यादा होगी? यूरोपियन कंट्रीज की ज़्यादा होगी, तो वो यहाँ दिखाई देगा. एशियन कंट्रीज की कम होगी, वो यहाँ दिखाई देगा. ठीक है. और अफ्रीकन कंट्रीज अगेन आपको इसी थर्ड क्वाड्रेंट में दिखना शुरू होगा, जहाँ पर पॉपुलेशन मार्जिनली कम है और लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कम है. लेट्स रन दिस. देखा आपने, यहाँ पर आपको मेजरली अफ्रीकन कंट्रीज मिलनी शुरू हो गई. एशियन कंट्रीज आपको खैर काफ़ी वेल स्कैटर्ड है, बट मेजरली आपको जो यूरोपियन कंट्रीज आपको इस वाले उसमें मिल गई, और अफ्रीकन आपको नीचे मिल गई. एक्चुअली एशियन कंट्रीज भी काफ़ी डेवलप हो गई, इसलिए वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही घुस गई हैं. ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर जो वो प्लॉट लिया वो 60 है, तो 60 प्लस तो ऑलमोस्ट सारे ही हो गए हैं. अगर यही डेटा आप चेंज करके 1952 का कर दोगे तो एशियन कंट्रीज आपको यहाँ मिल जाएंगी. ठीक है, क्योंकि अब एशिया के अंदर भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई, इसलिए वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए. Yes, sir. Now the other thing that you need to see is that these points will not be stable. ये पॉइंट्स आपस में ऊपर नीचे मूव करते रहेंगे जैसे जैसे आपके साल बढ़ेंगे. जैसे मैंने आपको बताया, एशियन कंट्रीज पहले फोर्थ क्वाड्रेंट में थी, अब वो उठ के सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गई.
ऐसे ही आपके जब आप डेटा साइंस में आओगे तो आपके कस्टमर्स कभी कभार क्या होता है, कभी कभार आपके कस्टमर्स गायब हो जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, फिर गायब हो जाते हैं, ऐसा होता है ना। कई बार आप बहुत टाइम तक ऊबर यूज़ करते हो, फिर आपके साथ ऊबर का बेकार एक्सपीरियंस होता है, एकदम से आप ओला पे आ जाते हो। फिर कई बार आप जोमेटो यूज़ कर रहे हो तो फिर एकदम से आपने स्विगी की कोई स्कीम ले ली तो आप स्विगी यूज़ करना शुरू कर देते हो। सो डोंट बी मूव ऑल अक्रॉस दिस बोर्ड। सपोज मेरा एक्स एक्सिस पे मैं यहाँ लिखता हूँ कि एक्स एक्सिस पे कि हाउ मेनी टाइम्स दैट यू ऑर्डर, एंड वाई एक्सिस पे लिखता हूँ कि आप कितने का ऑर्डर कर रहे हो। विच इज़ द बेस्ट कस्टमर फॉर इसके बाद मैं आपको क्रेडिट कार्ड का बताऊंगा। विच इज़ द बेस्ट कस्टमर फॉर अ कंपनी। यहाँ पर ऑर्डर्स हैं और यहाँ ऑर्डर साइज है, ये ऑर्डर्स हैं, ऑर्डर साइज है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। विच इज द मोस्ट वैल्यूएबल कस्टमर। फर्स्ट क्वाड्रेंट गाइस, फर्स्ट क्वाड्रेंट is the most valuable customer. These are called as cash cows. इनको आप किसी भी तरीके से रिटेन करना चाहते हो अपने बिजनेस में, ठीक है। नाउ लेट मी गिव यू एन एनालॉजी ऑफ हाउ क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री वर्क्स। क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री वर्क्स इन सच अ वे, पीपल, यहाँ ऑर्डर्स की जगह पे पीपल हुज क्रेडिट लिमिट इज हाई। अगर मैं इनकम लेता हूँ और एक्सपेंडिचर, चलो ठीक है, इनकम आ गया और यहाँ पर ले लो आप एक्सपेंडिचर, ठीक है। नाउ हु अकॉर्डिंग टू यू इज द बेस्ट क्लाइंट फॉर अ क्रेडिट कार्ड कंपनी? और let me turn it around, guys. Let me turn it. This will not be a very good example. People whose credit limit is high. Yes, guys. Sorry. Now, actually, I wanted to show you something else. Credit limit is high, and payment is delayed. Who do you think, guys, is the most valuable customer now? Ayushi says second quadrant. Any other answers, guys? Always read the credit condition, the credit card conditions. उसमें terms and condition होते हैं, कभी एक बार पढ़ के देखना। Credit card companies charge somewhere around 40% per annum. 40% per annum. Usurious rate है actually में market में. Vidushi says 1, Aditi says 1. Exactly, guys, 1. जो लोग पैसा टाइम पे नहीं देंगे एंड जो लोग ज़्यादा पैसा कमाएंगे और ज़्यादा क्रेडिट लेंगे, वो मेरे लिए कैश काउ। कुछ लोग ऐसे होंगे जो सबसे कम फ़ायदा देंगे कंपनी को, जिनकी क्रेडिट लिमिट भी कम है और जो पैसा भी एक इमीडिएटली टाइम पे देते हैं। दीज आर दी पीपल हु एक्चुअली नो हाउ टू यूज़ क्रेडिट कार्ड। एक पूरी कंपनी बन गई है गाइस, जो अब which is now become a unicorn, just to force people to come into this particular category. What is that company? Which lets you not to delay your credit. Start reading, guys. Start reading. Cred. Heard of the company? Yes, exactly. Cred, which lies exactly here. Okay. So this is how you. So these points, guys. These points keeps on moving. तो इसीलिए we need to see, and that is the reason that I'm telling you all of this is because this is how this actually works. This entire industry actually works. And data science में इस तरीके से आप पॉइंट्स को ट्रैक करने की कोशिश करते हो कि कौन सा पॉइंट कहाँ जा रहा है, ठीक है। सो दिस इज नॉट अ स्टैटिक व्यू, दिस व्यू विल कीप ऑन चेंजिंग एंड यू नीड टू कीप अ ट्रैक आपके लोग कहाँ जा रहे हैं, आपके क्लाइंट जो हैं, कस्टमर्स हैं जो कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। सो दिस ब्रिंग्स मी टू अनदर क्वेश्चन दैट in the color comment or in the color this thing code, can you give a numeric value? Can you give a numeric value like GDP? Pariba says no. Any other reasons? And why is the more important question. Guys, अगर आप कलर में न्यूमेरिक वेरिएबल डाल दोगे तो न्यूमेरिक वेरिएबल तो बहुत बड़ी रेंज है। तो यहाँ पर तो अभी आपके 5 कलर्स आए हैं या 5 कलर्स आए हैं, तो उसमें तो अगर आपके पास 50 वैल्यूज हैं तो 50 अलग अलग कलर्स हैं। सो यू डोंट वांट टू
you want to give information out of the graph rather than gibberish. So your graph should be informative. At the same point of time, it should not be too complicated for the other person to understand कि ये हो क्या रहा है ग्राफ में, ठीक है. Therefore, always remember whenever you are using hue, in fact Python में तो आप रन करने की कोशिश करो तो रन ही नहीं करेगा, एरर शो कर देगा. So when you are running hue, it has to be, or when you are running color in case of R, it has to be a continuous, it has to be a categorical variable. The next thing is size. Now we want to check another thing guys. अब कुछ फैक्टर्स हैं. अब इसमें मुझे ये नहीं पता है कि कौन सी कंट्री की पॉपुलेशन कितनी बड़ी है. मुझे तो हर कंट्री एक ही साइज की दिखाई दे रही है. ये ऑल दीज जियोमेट्रिक पॉइंट्स आर ऑफ अ सिमिलर साइज. आई रियली डोंट नो कि कौन सा बड़ा है कौन सा कम है. सिमिलरली जो मैं यहाँ पर जो द ग्राफ दैट आई वाज ड्राइंग, आई वांट माय बिगेस्ट कस्टमर्स, जो मेरा सबसे बड़ा कस्टमर है उसका जो पॉइंट है वो सबसे बड़ा हो, सो दैट मुझे पता चल जाए बॉस इसको तो मुझे लूज़ करना ही नहीं है, इसको कुछ भी दे के मुझे अपने बिजनेस में रखना है, रिटेन करना है, इसको मुझे कॉल करना पड़े. हैव यू हर्ड ऑफ अ स्कीम कॉल्ड एयरटेल ब्लैक? देखा आपने एयरटेल की रिटेंशन स्कीम, एयरटेल ब्लैक. You can merge all of you can bundle all of your connections, your prepaid connection or prepaid का postpaid में convert कर देंगे, then your DTH and then your home internet, all of them will be bundled under one bill and it will be discounted. That's called Airtel Black. So अगर आपके high customers हैं, ठीक है, अगर आपके बहुत अच्छे customers हैं, you want to retain them कि वो और कहीं ना जाए, ठीक है. Similarly, I'll give you an example from my personal experience. I buy a lot of stuff for my child from First Cry. Now, First Cry has offered me a loyalty membership, so that I only buy, so that I'm forced to buy a lot of products from them. ठीक है. So all of these, so उन्होंने कुछ देखा होगा, उन्होंने देखा होगा कि बॉस ये एक इसी क्वाड्रेंट के अंदर सारे पॉइंट्स बराबर नहीं है, एक ऐसा पॉइंट है जो बहुत ज़्यादा बड़ा पॉइंट है. आई वॉन्ट टू रिटेन, आई वॉन्ट टू फोकस ऑन दैट पॉइंट, एंड दैट इज़ वेयर द डिफरेंस बिटवीन एयरटेल एंड जियो इज, एंड दैट इज़ वेयर एयरटेल इज विनिंग द वॉर डिस्पाइट जियो हैविंग डीपर पॉकेट्स. जियो के पास बहुत सारे बिजनेस है, बहुत सारे धंधे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है. But it is, despite all of that, it's losing the war, the telecom war to Airtel. It's because Airtel had decided to give quality and to retain these guys, all these customers. Said I'll charge extra price. I don't want these people. इसीलिए now Jio is now stuck in a bad equilibrium with all of these. Subscriber base है, but subscriber base छोटा है, इकोसिस्टम वाला नहीं है. एयरटेल के पास जो सब्सक्राइबर बेस है वो कैश काउज वाला वो कैप्चर कर रहा है. यहाँ का एक यहाँ के 100 के बराबर पड़ रहा है. सो दिस इज एंड दैट इज हाउ यू एनालाइज, एंड दैट इज वाई गाइज अ लॉट ऑफ दीज कंपनीज आर नाउ, यूएस में अगर आप देखो तो बहुत कम सारी कंपनीज जो हैं नाउ दे आर हायरिंग इकोनॉमिस्ट्स. You might have heard about Hal Varian, guys. Professor Hal Varian. पढ़ी होगी reading? Yes, no? Yes. Hal Yes, Varian, sir. you know the current profile of Hal Varian? He is the chief economist of Google. Chief economist of Google. So a lot of these companies are now hiring, जिनका कोई मतलब ही नहीं है कि वो data scientist hire करें. But now these companies have started hiring data scientists. ये तो यूएस में तो पुराना ट्रेंड है, अब इंडिया में ट्रेंड ये शुरू हो चुका है दैट कंपनीज आर हायरिंग डेटा साइंटिस्ट कि अच्छा यार मुझे अब डेटा से बताओ कि व्हाट कैन आई डू मोर, हाउ कैन आई इंक्रीज माय रेवेन्यू. ठीक है. सो दैट इज़ वाई देयर इज़ अ ह्यूज रश टुवर्ड्स दिस एंटायर इंडस्ट्री, एंड कहा जा रहा है कि नेक्स्ट 10 years डेटा साइंस इज सपोज टू ग्रो अ लॉट. ठीक है, बिकॉज ओनली पीपल विद दिस बैकग्राउंड कैन गिव यू दीज इनसाइट्स. सो व्हाट वी वांट इज वी वांट टू गिव अ साइज एलिमेंट.
we want to add a size element to say one of our variables. Now my next logical question would be, will you give a size element to a categorical variable or a continuous variable? Will you give the size variable, will you assign the size variable to a numeric variable or a categorical variable? All of you agree? Numeric variable, क्योंकि size तभी तो मैटर करेगा, तभी तो साइज छोटा या बड़ा किस चीज़ बताया होगा. अगर वो नंबर नहीं होगा तो आप साइज कैसे बता पाओगे? सो देयरफॉर ऑलवेज रिमेंबर, यू जस्ट ऐड अनदर कोड टू योर एस्थेटिक्स वाला जो वो है कोड है. एंड नाउ व्हाट वी हैव इज, अपार्ट फ्रॉम कलर एज कॉन्टिनेंट, वी ऑल्सो हैव साइज. एंड साइज में अब आप बताओगे न्यूमेरिक, दैट जीडीपी पर कैपिटा के हिसाब से. नाउ व्हाट विल हैपन इज, अब यहाँ पर एक्स एक्सिस पे पॉपुलेशन है, वाई एक्सिस पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम अब मैं एक थर्ड नया एलिमेंट लेके आ रहा हूँ जिसमें कंट्री का साइज बड़ा या छोटा हो जाएगा, उस डॉट का साइज बड़ा या छोटा हो जाएगा, डिपेंडिंग ऑन वेदर और नॉट द जीडीपी साइज पर कैपिटा इज ह्यूज और नॉट. नाउ व्हाट हैज हैपेंड इज that we have these countries in terms of not just two factors, population and life expectancy. Now we can also see that how big is this country. Is it a rich country or is it a poor country? And therefore you will see, अब इस पूरे उसके अंदर you can also see easily, you can identify कि देखो ये इंडिया है, छोटा साइज है. एंड आप कंपेयर कर सकते हो सिंपली उसको यहाँ पर, एंड आप उसको कंपेयर कर सकते हो ये कौन सा कंट्री है. कैन समवन टेल मी विच इज दिस ग्रीन कंट्री? जापान विल नॉट लाई हेयर और शुड नॉट लाई हेयर. hold on, it might be Japan guys. 10 to the power of 8. 100 million नहीं, 100 million नहीं होगा ये. लेट मी चेक ये कौन सा कंट्री है. shouldn't be this. I'll be very surprised. जापान का पॉपुलेशन, दिस इज सेइंग 100 million तो नहीं है जापान का पॉपुलेशन. चलो let me check and this could be South Korea. I don't know. लेट मी चेक कि कौन सी कंट्रीज है जो इतना अमीर है. साउथ कोरिया भी हो सकता है. आइडली शुड बी लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो साउथ कोरिया और जापान की होनी चाहिए इतनी. यस गाइस, इट्स जापान. 12 crores. 12 crores. ठीक है, दिस इज जापान गाइस. यस, दिस इज जापान. चाइना नहीं हो सकता, चाइना तो ही रहा. चाइना तो है. पर कैपिटा भी देखना है ना अदिति, पर कैपिटा भी देखना है. पर कैपिटा के हिसाब से उसका साइज छोटा है. So this is how you can identify countries. South Korea will lie in the first quadrant only. नहीं, साउथ कोरिया का पॉपुलेशन है. साउथ कोरिया का पॉपुलेशन इज 5 crores, तो 50 million के अराउंड है. तो 50 million आपका हो गया 10 million. यहाँ कहीं लाई कर रहा है. साउथ कोरिया विल बी सम ईदर दिस और दिस. समझ में आया दीपशिका कैसे ढूंढा हमने? तो आप पॉपुलेशन देखो, लाइफ एक्सपेक्टेंसी आपको पता है कि अच्छी ही होगी, बस पॉपुलेशन देख के उसका साइज आपको पता है कि बड़ा होगा. दैट्स इट. समझ में आया गाइस? Yes, sir. नाउ लेट्स सी द लास्ट थिंग फॉर आवर क्लास. नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर डूइंग समथिंग कॉल्ड faceting. Now what faceting does is, now at times you want to divide your entire graph into multiple graphs. Say you want to see, this looks like a complicated data to me. You have 5-6 kinds of customers there. Now I don't want to see all 5 or 6 in one go or in one particular graph. I want to create separate graph for a separate continent. Understood the question? What we are trying to do?
दैट मैं सारे कॉन्टिनेंट्स को कॉन्टिनेंट वाइज ग्राफ देखना चाह रहा हूँ और मैं एक साथ देखना चाह रहा हूँ सारे ग्राफ। एक कॉन्टिनेंट का एक ग्राफ बन जाए, एक कॉन्टिनेंट का अलग ग्राफ बन जाए, थर्ड कॉन्टिनेंट का थर्ड ग्राफ बन जाए। सो व्हेन आई वांट टू डिवाइड my graphs, then what we do is we want to use subplots to get smaller graphs. We use facet. Now what facet does, it basically splits your data through a by function, split by. We will see something similar in the next class when we will come back to dplyr library, and we will see some summary this thing, verbs like group by. There's something called group by. ठीक है, आप कई चीज़ों को ग्रुप एज अ ग्रुप देखना चाह रहे हो, ठीक है, तो हमको ग्रुप बाय का जो देखेंगे, तो ग्रुप बाय का एक्सटेंशन इन केस ऑफ योर ग्राफिकल मेथड इज योर facet. Now your facet is basically you are saying, अब क्या इसमें ऐड करोगे, ये सारा का सारा कोड तो सेम है, इस कोड में कोई डिफरेंस नहीं है, बट इन द एंड यू विल ऐड अ प्लस साइन एंड से facet underscore wrap, एंड देन यू हैव, अच्छा आप किससे करना चाह रहे हो, ग्राफ को डिवाइड कैसे करना चाह रहे हो। अगेन गाइज आपको ये बहुत केयरफुली चूज करना है, क्योंकि अगर आपने कोई ऐसा वेरिएबल ले लिया जिसके बहुत सारे नंबर्स हैं, तो आपके पास हो सकता है 100-150 ऐसे ग्राफ बन जाए। सो usually you whenever you're dividing the facet part, you take it as a categorical variable. ज़रूरी नहीं है, but usually you take it as a categorical variable so that the number of graphs are limited. Again, always try to counterintuitively see that अच्छा मुझे कितने ग्राफ्स चाहिए और मैं ग्राफ से चाहता क्या हूँ या चाहती क्या हूँ देखना, ठीक है, तो इसमें मैं कॉन्टिनेंट वाइज देखना चाहता हूँ। सो टू डू द कोड इज यू ऐड अ साइन कॉल्ड एज tilde. Tilde is something that you will find on the left hand side of your keyboard, on the top of it, escape के नीचे आपको मिल जाएगा, ठीक है, tilde sign। तो आप tilde sign लगाओगे and you will add whatever variable that you want the subplots for, and then you run it and you will find a beautiful, can you see guys? So आपके पास अफ्रीका का अलग आ गया, आपके पास अमेरिका का अलग आ गया, एशिया का अलग आ गया, यूरोप का अलग आ गया, एंड ओशिनिया का। एंड इफ़ यू वांट टू कंपेयर एवरीथिंग, और ईयर वाइज अगर आप देखना चाहते हो, अब जैसे मैंने आपको कहा था ना कि ज़रूरी नहीं है कि न्यूमेरिक, ज़रूरी नहीं है कि आप उसको सिर्फ कैटेगोरिकल ले सकते हो, आप कई बार यू कैन ऑल्सो इंक्लूड वेरिएबल्स लाइक ईयर्स हमारे पास बहुत सारे हैं, बट ईयरली अब आपको ये दिखाएगा कि ईयरली वैल्यूज़ कैसे चेंज कर रही हैं। इसमें मल्टीपल ग्राफ्स बनेंगे, बट आपको एनालिसिस बड़ा अच्छा मिलेगा कैसे हमारा ईयर बाय ईयर, एंड दिस इज़ व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू। मैं आपको वो चीज़ बता रहा था ना कि देखो शुरू में आपको लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है आपकी, शुरू में देखो 1952 में आपकी जीडीपी पर कैपिटा भी कम थी और लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कम थी सारे एशियन इकोनॉमीज़ की, यहाँ पर इधर लाई कर रहे थे। अब देखो अब देखो वो कह रहा था ना मैं, मूव करेंगी कंट्रीज़, धीरे कंट्रीज़ मूव करेंगी, और कंट्रीज़ अब मूव करना शुरू हो गई हैं, और काफ़ी सारी अब आपको एशियन कंट्रीज़ जिनकी जीडीपी पर कैपिटा भी ज़्यादा है और लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी ज़्यादा है, वो मूव कर गई हैं यहाँ पर ऊपर की तरफ। देखो कुछ कंट्रीज़ यहाँ मूव कर गई हैं, पहले यहाँ पर कोई भी आपको रेड नहीं दिख रहा होगा, सिर्फ यूरोपियन एंड अमेरिकन कंट्रीज। अब देखो यहाँ पर डॉटिंग प्रेजेंस ऑफ अदर कंट्रीज़ भी आना शुरू हो गया, ठीक है। आपको यू कैन फाइंड अ लॉट ऑफ ग्रीन, ये ग्रीन पहले पूरा का पूरा देखो, ग्रीन पहले का पूरा यहाँ था, अब ग्रीन काफ़ी सारा ग्रीन कंट्रीज़ जो हैं अब यहाँ पर आ गई हैं, ठीक। अब यहाँ पर सिर्फ अफ्रीकन कंट्रीज़ रह गई हैं इस वाले उसके अंदर। सो टेम्पोरल एनालिसिस में भी काम आ जाता। क्लियर है गाइस? यस, नो? Yes. चलो, सो try your hands at all of this guys. Try multiple variations of this. Try to find more insights out of this data, and in the next class on Wednesday, what we will be doing is we will again go for a deeper dive into the dplyr library,
whereby we will see multiple kinds of analysis in terms of tabular data, and then link it to again ggplot, and we will take a review, hands-on review on Friday, next Friday, and then from next week onwards, after that we will start with, हमने जितना भी R का हमने जो major portion cover करना था वो कर लिया होगा, then we will start with कि अच्छा we can start with the Excel part, and simultaneously we will show you that हमने कितना course कर लिया. Any doubts, any questions? Do we have to put a plus? Yes, after you complete it, yes you have. After you have coded the aesthetics part, then you have to. Within aesthetics, you just need to use a comma. So like you specified, like a few codes, like size and all, would require a numeric variable. Yes. But like it's not mandatory, you know, that if we It's have not different mandatory. sizes. It's not mandatory, but depends अनन्या आपके पास categories कितनी है. मतलब you don't want to unnecessarily complicate. So till the point you are able to deliver a valid point. फॉर एग्जाम्पल अनन्या, अगर मैं वहाँ पर ये जो साइज की जगह पे, ये कॉन्टिनेंट की जगह पे मैं कलर कर देता कंट्रीज, वो कर देता जीडीपी पर कैपिटा, तो जीडीपी पर कैपिटा तो मेरे पास हज़ारों जीडीपी पर कैपिटा, तो मेरे पास हज़ारों कलर्स आ जाते, तो इट वुड नॉट हैव मेड एनी सेंस. सो यूजुअली जब आप ह्यू कर रहे हो या कलर कर रहे हो, तो यूजुअली यू विल टेक as a categorical variable, and जब आप साइज करो in any case आप न्यूमेरिक वेरिएबल करोगे. साइज तो in any case न्यूमेरिक के साथ ही काम करेगा. Yes, understood. So it depends upon the user as well and how we're trying to interpret. Yes, exactly. Okay, fine guys. So let's meet on Wednesday. So thank you very much Ashwarya, and thank you everyone. Let's meet on Wednesday. Okay. Thank you, sir. Bye bye. Jai Hind. Thank you, sir.